Good morning friends, welcome back. Here in this video, in the video number 4 related to the topic depreciation. Here we will discuss the situation where the firm has to maintain several assets and we will see how to use asset disposal account, how we do accounting with these conditions and these accounts. So let's start. First discuss the question. That is on January 1st 2015, Khosla Transport Company purchased 5 trucks. You can see there are 5 assets on which we have to maintain depreciation. We have to charge depreciation and we have to maintain our books accordingly. 20,000 each. Depreciation has been provided at the rate of 10% per annum using straight line method and accumulated in provision for depreciation account. On January 1, 2016, one truck was sold for 15,000. On July 2017, another truck purchased for one more assets is being purchased here, sold for 18,000. No, this truck was purchased on January 1st 2014 and a new truck costing 30,000 was purchased on this October 1st 2016. Now we have to prepare trucks account, that is asset account, provision for depreciation account. We have to maintain depreciation through provision, and truck disposal account. For the year ended on, for 3 years we have to maintain the accounting. So let's start. So here is the truck account of Khosla Transport Company. They purchased on 2015 January 1st. They purchased the book, the truck for 1 lakh. 5 trucks are being purchased. At the end of the year, we balance it, and now provision for depreciation at the end of year, that is 10,000. That is 10%. As we have given information in question. Here we can see how we calculated 10,000. Year 2015, 1 lakh 10,000 for 1 year. 1 lakh 10% for 1 year is 10,000. So this is the complete accounting for first year. Now in second year, Khosla Transport balance transferred to the next year. Now truck disposal account. Here we got truck disposal. It means the truck is being sold. So the sold truck is being transferred to truck disposal account. Now balance left. Khosla Transport is left with only 4 trucks, that is 80,000. And we close the account for this year. Now truck disposal account, here machineries got transferred. You can see on January 1st 20,000, the machinery which is being sold is transferred to truck disposal account. Now what is the depreciation? 10% for the sold truck. So the book value of sold truck at the time of sales is 20,000 minus 2,000, and truck is being sold for 15,000. It means the book value of truck is 18,000, but it is sold in only 15,000. So there is a loss on sale of first truck. You can see that loss on first truck. How will we calculate? Original cost 20,000 less depreciation at 10% is 2,000
The book value is 18,000, sales on the price of 15,000, so the loss is 3,000. Now provision for depreciation. Now we have only 4 trucks left. Here you can see balance which we have transferred from the last year is 10,000. Now on the same day 2,000 will be transferred to truck disposal account. We have seen in the last posting in truck disposal account, हमने देखा कि ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में 2,000 रुपये का जो हम लोगों ने डिप्रेशिएशन किया वो इस प्रोविज़न से हम लोगों को कम करना है, तो हम लोगों ने उसको हटा दिया। ये हमारा नया डिप्रेशिएशन इस साल का है, जो कि सिर्फ 4 ट्रक बचे हैं, तो उस पर सिर्फ 8,000 रुपये डिप्रेशिएशन होगा। वी कैन कैलकुलेट इट। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर्स डिप्रेशिएशन। नाउ द सेकेंड ईयर्स डिप्रेशिएशन इज़ 10,000 ऑन 10% ऑन 80,000 इज़ 8,000। तो बैलेंस हमारे पास अभी भी प्रोविज़न में कितना बचा है? 16,000। अब चलते हैं फिर से ट्रक अकाउंट पे। इन द लास्ट ईयर अकाउंटिंग फॉर थर्ड ईयर, तो इसमें बैलेंस हमारे पास 80,000 का है, और इस साल फिर हम एक ट्रक बेच रहे हैं। तो इस ट्रक को जब बेचा हम लोगों ने, तो हमें इस परचेज पे हमने एक और नया ट्रक भी ख़रीदा है 1 अक्टूबर को, और इस तरीके से हमारा इसका बैलेंस हमारे पास तीसरे साल के अंत में हमारे पास 90,000 के ट्रक्स बचे हुए हैं। अब आते हैं ट्रक डिस्पोजल में। पिछला डिस्पोजल अकाउंट हम लोगों ने क्लोज़ कर दिया था। अभी नया डिस्पोजल मशीनरी से फिर 20,000 के ट्रक, जो जिसकी बुक वैल्यू अभी 20,000 दिखा रहा है, और उस पर डिप्रेशिएशन पहले साल का, दूसरे साल का और जुलाई तक का डिप्रेशिएशन, मतलब आधा डिप्रेशिएशन कुल मिला के हुए 5,000। और हमने ये जो सेल किया है वो किया है पूरे 18,000 की सेल की है हम लोगों ने। और इस 18,000 की सेल में सेल किया हम लोगों ने। देखते हैं किस तरीके से हमारा प्रॉफिट यहाँ पे या लॉस का कैलकुलेट होगा। ओरिजिनल कॉस्ट था 20,000, डिप्रेशिएशन चार्ज 2015 में 2,000, 16 में 2,000 और 17 में अप टू जून 2016 1,000। और बुक वैल्यू ट्रक की कितनी बची हमारे पास? 20,000 में से 5,000 चला गया तो 15,000। लेकिन हम लोगों ने सेल किया 18,000 में, तो हमारा प्रॉफिट ऑन सेल है 3,000 रुपये का। दिस इज अ कैपिटल गेन। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रक डिस्पोजल अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं प्रोविज़न अकाउंट में हमारे पास क्या बचा है। क्योंकि ट्रक्स अभी में हमारे पास है, तो प्रोविज़न अकाउंट कम्प्लीटली तो ख़त्म होगा नहीं। चलिए, बैलेंस हमारे पास 16,000 था, और ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में हमने फिर से 5,000 रुपये भेजे, क्योंकि दूसरा ट्रक जो हमारा बिक रहा है उसको भी हम लोगों ने ट्रक डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, उससे जो रिलेटेड जितने भी डिप्रेशिएशन थे। फिर उसके बाद अब हमारे पास जो बचे हुए डिप्रेशिएशन हैं उनका कैलकुलेशन देखते हैं हम लोग कैसे हुआ है। 2017 में हमारे पास कितने ट्रक बचे हैं? सिर्फ 3 ट्रक बचे हैं। तो 60,000 एक साल के लिए, 6,000 और 10,000 जो दूसरा जो बचा है उस पर 1,000 का, और एक नया जो ट्रक ख़रीदा हम लोगों ने। देखिए, ये जो पहला 60,000 है वो साल के शुरुआत में हमारे पास 3 ट्रक बचे हुए थे। 3 ट्रक ऐसे हैं जिन पे पूरे साल तक का ब्याज डिप्रेशिएशन लगाना है, तो वो हमने 6,000 लगाया। एक ट्रक ऐसा है जो आधे साल मतलब 6 महीने के बाद बिक गया है, उस पर सिर्फ 6 महीने का डिप्रेशिएशन लगा, जो कि 1,000 है। और एक ट्रक जो हमने ठीक ईयर एंड के 3 महीने पहले ख़रीदा था, तो उस पर सिर्फ 3 महीने का हम लोग डिप्रेशिएशन लगाएंगे, तो जो कि 750 रुपये। तो इस साल का टोटल डिप्रेशिएशन हमारा जो होगा वो 7,750 रुपये। इसकी एंट्री कर दी हम लोगों ने। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व किया यहाँ पे। और आपके पास भी अगर कोई ऐसे सवाल हैं जिनको आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे उन सवालों के बारे में बताएं, और हम लोग उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। आपके कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ लेट मी नो, और अपने मित्रों को जो भी कॉमर्स से रिलेटेड हैं उनको वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। सो
Thank you.